very positive manner. We have approximate 3,000, more than 3,000 participants as a student. And we have crossed 4,500 number of participants, rest are the faculty and others. So I would like to welcome one and all. So today, I would like to introduce our first speaker, Dr. Navdeep Joshi. He's a founder नमस्कार। of Navyog Gram, assistant professor in Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi. He's SFC member, CCRYN, Ayush, Ministry of Ayush, Government of India, government body member, Delhi University, governing body member, Delhi University. He's a Reiki Grand Master. He has done his BSc from Kumaon University in Biology, PGDNYSC, that is Naturopathy Yoga Science PG Diploma, from Lucknow University in Naturopathy and Yoga, MA in Yoga from Gurukul Kangri University. He has a very peculiar PhD topic. He has done his PhD in Nada Yoga from Gurukul Kangri University. He has been awarded Yogacharya of the Year 2014 by Bharat Nirman. And he is also a recipient of Yoga Shiromani Award of Decade in December 2019. Very warm welcome from the देशबंधु परिवार. आपने हमारे को समय दिया और हम बहुत eagerly wait कर रहे हैं आपके लेक्चर का, because नाद योगा is something going to be very different for our participants, and that was the focus behind this program of mine. First, for 21 days, to introduce, apart from one aspect of yoga, that is asana, other aspects of yoga, which we can all, at least we can introduce people about the different aspects available as yoga. So with all the eminent speakers' wisdom, my participants are very happy that we are getting wisdom from different speakers on different scenario of yoga. So once again, welcome. I would also like to extend my welcome to Dr. Aradhana Singh. Thank you so much. Aradhana Singh ji is counseling psychologist. She is a author of bestseller book on parenting, a beautiful journey. She has worked with Indian Railways, Indian Golf Union, Patna Pirates, and many other organizations. Right now, she is working with Army Golf Course. Welcome, Dr. Aradhana, and Thank you so much. we would be looking forward for your lecture as a second speaker. So over to you, Yogacharya Navdeep Joshi ji. Floor is all yours. थैंक यू वेरी मच देश बंधु कॉलेज परिवार। और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है लगातार इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को लाना और पूरे ग्लोबली इसमें लोगों का रहना। मैं बहुत थैंक्स करता हूँ डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी का, जो हमारे प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, डॉक्टर अंजुम मैम का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, डॉक्टर राजेंद्र जी और डॉक्टर आदित्य जी, और साथ में डॉक्टर विक्रम सर, जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ने का ये मौका दिया कि एक ऐसी फैमिली है जो फिजिकल एजुकेशन में है, लेकिन उनके पास इस तरह का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का भी जो काम है, जो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि जो हमारी हेल्थ है या जो हमारी वेल्थ है, वो बिना हर किसी के, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल के बिना पूरी नहीं हो सकती। आज मैं आपको जो भी मेरे पास ज्ञान है, मैं विद्यार्थी हूँ योग का, और उस आधार पे जो हमारे चक्रास हैं उसकी बैलेंसिंग के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। जिसमें जब हम चक्रास की बात करते हैं तो एक एनर्जी है, और हम लोग 72,864 नाड़ियों को अपने शरीर में मानते हैं, और उस शरीर के उस एनर्जी में जहाँ जब ब्लॉकेज होता है तो हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और वो ग्रोथ के रुकने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में ब्लॉकेज होना। एक ब्लॉकेज को हम समझते हैं जो हमें हार्ट की ब्लॉकेज या हमारी आर्टरीज की, वेन की, या ब्रेन में जो हेमरेज होता है उस तरह की ब्लॉकेज, लेकिन जो हम योग की भाषा में जो ब्लॉकेज करते हैं ये उस तरह का नहीं है, ये एनर्जी की ब्लॉकेज है। इसलिए इसको हमने डिफरेंट मीनिंग में देखना चाहिए। ये नर्व्स भी नहीं है, ये एनर्जी चैनल है, जिस एनर्जी चैनल को हम बॉडी में अलग अलग रूप से देखते हैं। जब हम आसन करते हैं तो आसन केवल फिजिकली ही
आपको बेनिफिट दे रहा होता है, ऐसा नहीं है। आसन जो है आपकी उन ब्लॉकेज को दूर कर रहा होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर ये समझ के आसन करता है कि मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरा ये डिजीज कम हो जाएगा, ये उसके, इसको हम साइड इफेक्ट बोलेंगे, लेकिन वो साइड इफेक्ट बेनिफिट है, वो एक तरह का बेनिफिट है। जबकि जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो आपको हायर एनर्जी से जोड़ रहा होता है, आपकी कॉन्शियस को बढ़ा रहा होता है, और वो इसलिए बढ़ा रहा होता है कि हमारी पूरी बॉडी एक है। हम एलोपैथिक सिस्टम में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें अलग अलग, मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक कह रहा हूँ कि उनका अपना एक साइंस है। वो साइंस क्या है कि उनकी कार्डियोलॉजी के अलग वो हैं, उनके स्किन के डॉक्टर अलग हैं, उनके डाइजेशन सिस्टम के अलग हैं। लेकिन जब हम योग को मानते हैं, योग पूरी आपकी बॉडी को एक मानता है, और उस बॉडी में हमारे जो एनर्जी चैनल है, अगर वो एनर्जी चैनल खुले हुए होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ये जो हमारी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हम आगे पीछे अलग अलग जगह से काम करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हम बहुत ज्यादा, हमारा क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कभी दुखी होने लगते हैं और कभी सुखी होने लगते हैं। ये क्रम भी आपके चक्रों से जुड़ा हुआ है। तो जब हम चक्रों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चक्र है क्या। तो ये एनर्जी सेंटर्स है जो हमारे स्पाइन में 7 एनर्जी सेंटर हैं, जिसमें एक हमारा आज्ञा चक्र, अपने 5 चक्र हमारे बीच में है। एक चक्र हमारा आज्ञा चक्र यहाँ पे है जो अपने बाहों के बीच में, और आखिर सहस्त्रार चक्र है जिसको थोड़ा सा चोटी के पास में बोला जाता है। ये जो सारे चक्र हैं, ये हमें आपकी परिस्थितियों के साथ जोड़ते हैं। अगर हम इनकी साइंस को समझ जाते हैं और समझते हैं कि जो हम आसन कर रहे हैं, जिसमें हम स्थिर सुख आसनम की बात करते हैं कि कितनी देर रुकना, हमने एक बार में 12 आसन कर लिए, 15 आसन कर लिए, डिफिकल्ट आसन कर लिए, लेकिन हमने होल्ड नहीं किया, हमने उसका पेन नहीं सहा, तो हम उसमें चक्रास को या उस चैनल को जो हमारा टूटा है उसको मजबूत नहीं कर पाएंगे। वो सही में फिजिकल एस्पेक्ट ही जुड़ेगा, लेकिन जब हम इसको ब्रीदिंग के साथ में, मेडिटेशन के साथ में जोड़ते हैं तो हमारा चक्रास का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। चक्रास के डेवलपमेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे सबसे नीचे जो चक्र है उसको हम मूल आधार यानी कि आधार ही वो है जिसको पृथ्वी तत्व से भी जोड़ा गया है। उसी के नीचे एक त्रिकोण आकार की एक प्रक्रिया है, उसके वहां पे एक कुंडलिनी शक्ति है, और वो कुंडलिनी शक्ति जो है वो हमारी चक्रास के डेवलपमेंट के लिए होती है। और उसी के द्वारा सबसे, इसीलिए मूलाधार, और मूलाधार क्या है, जो हमारा सबसे पहला चक्र है वही पशुओं में, एनिमल्स में, वो सारे चक्र जो है सबसे लास्ट चक्र है, यानी कि जो हमारा जहाँ पे सहस्त्रार है वहां पे वो मूलाधार चक्र है। यानी कि काम क्रोध लोभ मोह, ये जो हमारी बेसिक सेंस है, यानी कि हम उस इच्छा के प्रति, सेक्सुअल एनर्जी के प्रति काम क्रोध, और उससे फिर अगर वो नहीं मिला तो क्रोध पैदा होता है, क्रोध नहीं होता लोभ मोह, ये जो चार हैं इनसे हम उसमें जुड़े रहते हैं। उसी के कारण हम अधिक सोना, आलसपन, निद्रा ज्यादा हो जाता है, संभोग में ज्यादा रुचि या खाने इच्छाओं में ज्यादा। तो जब हम सही में चक्रा के जागरण के लिए हम अलग अलग आसनों को कर रहे होते हैं, जैसे वीरभद्रासन है, वीरभद्रासन जब हम करते हैं तो उससे आपके पैरों में एक खिंचाव पैदा होता है। आप आजकल हम देखेंगे कि हम सबके पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहता है, बहुत वो उतनी एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र तो डेवलप हो रहा है, क्योंकि हम कल्पनाशील है, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हमारा अगर मूलाधार चक्र अगर मजबूत नहीं है तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई अवसर आया, अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन वो छूट गई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बेसिक चक्र मजबूत नहीं है। तो इसीलिए कुछ कुछ आसन है जो उसको मजबूत करते हैं। और जब हम केवल उस चक्र पे मेडिटेशन भी करते हैं, जैसे मैं नाद मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगा बाद में, तो उसके द्वारा क्या होता है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो वहां से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक तरह से आह्वान होना है, वो कन्वर्ट हो जाती है बायोमैग्नेटिक फिजिकल एनर्जी में। और जो आपका मूलाधार चक्र है वो आपकी फिजिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए जरूरी है। अगर वो मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं होगा तो आपकी वो एनर्जी नहीं होगी, तो आपकी जो इच्छाएं हैं जिसको आपको पूरा करना है वो भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। आप उन इच्छाओं को अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो जैसे मेरे बात अभी मेंटल हेल्थ के लिए मैडम आने वाली हैं, वो बताएंगे कि कई तरह की कुंठाएं
कि जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो हम बड़ा बड़ी जो है दिक्कत होने लगती है। तो ये एनर्जी आपकी और सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। आपके जो बायोमैग्नेटिक फील्ड है बॉडी का, उसको बैलेंस करने का जो काम है, ये आपकी करती है। जब हम इसको मजबूती से करते हैं, तो आपके अंदर एक निर्भीकता एक एक निर्भीकता आने लगती है, यानी कि डर, फ़ियर जो है आपका, जो आपकी मजबूती है, वो आपको बढ़ने लगती है। और धीरे-धीरे जो आप कर रहे हैं, जैसे हमने इच्छा पूरी भी करी आपको, लेकिन आनंद नहीं है। आपने खाना खाया, लेकिन जो कोई आनंद नहीं है। मतलब कुछ दुनिया में सारा आपका जो एन्जॉय होना था, खत्म हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम जो दूसरा चक्र में आते हैं, वो स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र जो है, जैसे अभी मूलाधार चक्र में 4 पेटल्स होते हैं और इसका कलर रेड होता है। तो रेड कलर, यानी कि रेड कलर हम कब पहनते हैं? देखिए, अब जब हम शादी होने वाली होती है तो अधिकतर सारे लोग रेड कलर पहन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी का फ्लो है। एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में, पूरे शरीर में, हर कोई जना खुश होना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है, तो एनर्जी आपकी खाली लूज हो जाती है, तो आपको एंजॉय नहीं आता है। तो ऐसे ही उसके 4 पेटल हैं। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है। स्वादिष्ठान चक्र जो है, हमें जोड़ता है कि वो व्यक्ति जो है हर समय मनोरंजन, मतलब हर समय खुश रहना चाहता है, दूसरे को खुश करना चाहता है, मौज मस्ती में वो अपने जीवन को लगाना चाहता है। और लेकिन अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफर होती है। यानी कि एक व्यक्ति जिसको आप देखते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो अधिकतर जो है ज़्यादा गॉसिप में अपने टाइम को निकालता है। ज़्यादा, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई न्यूज़ आ गई, न्यूज़ में हम वो करेंगे, गवर्नमेंट ऐसा गलत काम कर रही है, ये देश बंधु के जो कॉलेज है, ये अपना एक चला रहा है, उसमें कुछ ऐसा बेकार है। मतलब हर जगह पे हम कुछ ना कुछ कमियों को निकालना और उसमें गॉसिप करना और उसमें आनंद भी लेना, इस तरह का जो रहता है। तो इसमें धीरे-धीरे क्रूरता का भाव, अगर ये चक्र आपका गड़बड़ होता है, तो आप एक तरह से क्रूर हो जाते हो और आप आलस, बहुत ज़्यादा आलस, यानी कि आपको कुछ ना करना पड़े और होता रहे, इस तरह से। दूसरों पे अविश्वास, जो हम बिलीव नहीं कर पाते दूसरों को, छोटी-छोटी बातों में वो करने लगते हैं। तो आप आनंद में तो है, लेकिन हमें क्या है कि इसके अलावा भी बहुत आनंद है, इसको जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हम इस चक्रास को बैलेंस करते हैं, तो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है स्पिरिचुअल एनर्जी में, और वो आपको और आगे की ओर ग्रोथ करने के लिए कोशिश करती है। इसमें हमारे 6 पेटल्स होते हैं और ये हमारी सिंदूरी कलर फिर धीरे-धीरे आगे हमने बढ़ना है। इसका अगला जो प्रभाव है हमारा, वो चक्र है, वो मणिपूरक चक्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है हमारा मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र जो है हमारा, ऐसा व्यक्ति जो मणिपूरक चक्र के प्रभाव में होता है, वो हर समय कुछ ना कुछ करने, मुझे कोई कर्मयोग, वो ऐसा व्यक्ति होगा वो रुकेगा नहीं। ऐसा आपके वहाँ बालक होगा वो रुकेगा नहीं, मुझे कुछ काम करना है, कर्मयोगी की भूमिका में आता है। और इसीलिए मणिपूरक चक्र जो है हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी है वो उसको बढ़ाता है। अब ये हीट एनर्जी क्या कर रही है आपको, जैसे जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी भी हो रही है, जिनका पेट जल रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसको बैलेंस नहीं किया। और अगर ऐसा है, तो या तो अगर आपके डाइजेशन कमजोर है, और तो आपकी हीट एनर्जी कम हो गई है, इसको हम जो है वहां पे जठराग्नि भी बोलते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त है। यानी कि अगर हम इसको फिजिकल एस्पेक्ट में देखेंगे, तो बॉडी में जरूरी है कि हम इस एनर्जी को बैलेंस करें। क्यों? क्योंकि ये जब डाइजेशन आपका अच्छा होगा, तो आप उस रस को पूरी बॉडी में बनाएंगे। एक बात मैंने देखी है, जो मैं अपने नव योग जिसको मैंने फाउंड किया, उसमें मैं बताता हूँ कि नव मतलब नया, योग मतलब जोड़ना, यानी कि न्यू थिंग से जोड़ना, नए विचार, नई थिंग, इन सब से जोड़ना। तो जब हम इससे जुड़ते हैं, तो वर्तमान में रहते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि जब एनर्जी डाइजेशन आपका अच्छा नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं आएगी। मान लिया जाए आपका मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र अच्छा है, लेकिन आपने डाइजेशन अपना मजबूत नहीं किया, तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट नहीं किया डाइजेशन में। तो इसीलिए इस जगह पे जो मणिपूरक चक्र है, अगर ये बैलेंस नहीं होता है, तो हम लोग जो है
ज्वेलसी में चुगली करना, एकदम से दूसरों के पास बात नहीं करना, फियर इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें फियर होने के कारण हम छोटी छोटी बातों को हम इमोशनली भी अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं लोगों से। हम एक बार कोई चीज हो गया, जैसे आप अभी आजकल कोविड-19 है, तो कोविड-19 में सबका असर पेट, बहुतों के पेट खराब हो, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम आता है बच्चों का, एकदम ठीक है, लेकिन बच्चों का पेट गड़बड़ होने लगता है जिस समय एग्जाम आता है। कभी इंटरव्यू आने वाला होता है तो हमारे पेट में एक अलग सा एक तरह का वेव चलता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि कुछ डर का भाव आने लगता है। इसी में दूसरा वाला जो फीलिंग आती है, ये मैं फीलिंग की बात बता रहा हूँ, जो दूसरी वाली फीलिंग हमें ऐसी आती है जैसे आपके पेट में मछली चल रही है, मछली की गुदगुदी। तो ये है आपका रिक्रेशनल स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो आपने उसको ले लिया है, हाँ मेरे को करना है, आई कैन डू। इस तरह का जब आपका रिक्रेशनल स्ट्रेस होगा, तब आपके अंदर एक मछली जैसी फीलिंग आएगी, एक अलग से गुदगुदी महसूस होगी कि अब मेरा इंटरव्यू आ रहा है, अब मेरा एग्जाम आ रहा है, अब या तो अब ये फीलिंग नहीं आ रही है। इस फीलिंग के जगह पे डर हो गया है, तो आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। वो जो एनर्जी है आपकी, जो हीट एनर्जी है, वो चेंज हो जाएगी, वो आपके डाइजेशन को और बेकार कर देगी। तो यहाँ पे जब ये इस चक्र को अगर आप ध्यान करते हैं, मेंटेन करते हैं, तब आप क्या होता है, आपका आत्मबल बढ़ने लगता है, आपका आत्मसम्मान बढ़ने लगता है, आपका करेज, आपकी स्ट्रेंथ ये बढ़ने लगती है। तो ये मणिपूरक चक्र बहुत अच्छा है। और इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो जो हमारी सेंसिंग फीलिंग है, जो सेंसरी फीलिंग है, यानी कि टच, टेस्ट, स्मेल, लाइट, ये सब चीजों से जब आपका मणिपूरक चक्र अगर मजबूत नहीं है, तो ये जो फीलिंग भी आपको महसूस हो रही है वो भी कम हो जाती है। जो मैं आपको पहले भी अभी कह रहा था, मैं पूरा नहीं कर पाया, कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो आप, ठीक है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है कि आपको मन की वृत्तियों को रोकना है, मन को एकाग्र करना है, फोकस करना है। लेकिन बहुत सारे लोग मन को एकाग्र करने के बाद में आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, लेकिन उनका पेट गड़बड़ रहता है, उनके अंदर वो करेज, स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपनी बॉडी में भी ध्यान देना है। बॉडी, माइंड, सोल, अगर ये तीनों को बोल रहे हैं, तो तीनों पे हमें वर्क करना है। ये नहीं कि केवल माइंड पे। अधिकतर हम सब लोग क्या है, कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करने लगते हैं, ठीक है, आपकी हायर एनर्जी अच्छी है तो हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ आसन, कुछ ना सूक्ष्म योगिक एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम, टहलना है, और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो डाइट है, सात्विक डाइट, वो लेनी भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी है तो आप कुछ भी खाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सात्विक डाइट लेनी ही पड़ेगी। तो ये सब जब हम मणिपूरक चक्र से ऊपर उठते हैं, तो आपके अंदर जो घृणा का भाव है, भय का भाव है, लज्जा, आपकी डिटैचमेंट जो है, ये सब चीजों से आप ऊपर उठते हैं और आप आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो हमारे यहाँ ये चक्र है, और इस चक्र का अगर हम देखते हैं, वैसे तो सभी में कोई ना कोई ग्लैंड का संबंध है। इस अनाहत चक्र में हमारी थाइमस ग्लैंड का संबंध है, और थाइमस ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इस समय कोविड-19 के समय में हमारी इम्यूनिटी बड़ी महत्वपूर्ण है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अनाहत चक्र पे ध्यान करना जरूरी है। इसमें 12 चक्र होते हैं, और ये ग्रीन कलर का है, और इसीलिए देखिए आपकी प्रकृति भी आजकल ग्रीन हो रही है, इसीलिए अभी अनाहत चक्र में लोग खुश है। ये जो इसकी जो एक्टिव एनर्जी होती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी अगर इसकी बनती है अनाहत चक्र की, व्यक्ति सृजनशील हो जाता है। जैसे अभी अंजुम मैम भी बात करी थी कि मैं जो है, बहुत सारे लोग आजकल कुत्तों को खाना दे रहे हैं, चिड़ियों को खाना दे रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे अंदर आत्मा है, ये आत्मा हमारे अंदर नहीं है, सब जगह पे है। तो जब हमारा अनाहत चक्र अगर डेवलप होता है, तो हम अपने लिए नहीं सोचते, केवल अपने परिवार के लिए नहीं सोचते, हम सोशली सबसे एक्टिव होने लगते हैं, सबके साथ कुछ नई नई क्रिएटिव चीजें करने लगते हैं। आपने देखा होगा जिनका अनाहत चक्र और अच्छा हो जाता है, वो हाथी की गोद में बैठ जाता है, वो शेर के साथ खेल रहा होता है, वो भालू के साथ खेल रहा होता है, वो कहीं डॉगी, आपके पास बहुत सारे डॉगी आएंगे, आपको भौंक रहे, वो ऐसे चुपचाप से, शांत रहो, आप तो इतने प्यारे हो, ऐसा करके वो अफर्मेशन करता है, वो डॉगी चुपचाप से चले जाते हैं। कब हो रहा है ऐसा? जब आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है, क्योंकि ये इमोशनल एनर्जी भी है। तो ये हृदय पे संयम करने पर इस तरह की एनर्जी हमें मिलती है।
और इस चक्र का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, हमारे पास समय की कमी है, तो अगर आपको अनाहत चक्र को बैलेंस करना है तो रात को सोते समय ध्यान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हो क्या रहा है कि हमारा आज्ञा चक्र 24 घंटे काम कर रहा है, कभी याली कॉन्फ्रेंस है, कभी वाली कॉन्फ्रेंस है, कभी यहाँ, और हर कोई जना, आप किसी को फिजिकली नहीं मिल पा रहे, आप जो है सबको जो है इंटरनेट से मिल रहे हैं, जैसे हम आपस के साथ में मिल रहे हैं। तो क्या है कि आपका ऊपर जो क्रिएटिव चक्र है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, लेकिन उसको शांत करना है, उसको सुलाना है, नहीं तो क्या होगा, आपको इंसोम्निया हो जाएगा, आपकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो कुछ दिनों तक तो बढ़ी रहेगी, आप बहुत ज्यादा काम कर पाओगे, लेकिन उस कुछ समय के बाद आप डल हो जाओगे, आपको लगेगा कि कुछ बीमारी शुरू हो गई है। अब ये जो है, जो आपका ये थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड आपकी डब्ल्यूबीसी को एक तरह की आज्ञा देता है कि भाई आप जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है बॉडी में आने वाले, उन सबको लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ठीक है, आपकी डब्ल्यूबीसी गॉड ने बनाई है, लेकिन उसको और मजबूत कौन करेगा? आप उसको मजबूत करेगा कौन? आपका ये अनाहत चक्र है। जब आप इसमें इमोशनली दूसरों को देंगे, जो हम बात कर रहे थे, केवल यही नहीं है कि हम फिजिकली अपने को बनाते रहे, खाना खाते रहे और काढ़ा पीते रहे, उसी से मजबूत होंगे, नहीं, आपको ये सोशल थिंग पे भी काम करना पड़ेगा, आपके अंदर भावना, भक्ति योग भी डेवलप होना पड़ेगा, और जब भक्ति योग आपके अंदर डेवलप होगा, तब इसमें हृदय में संयम करने से ऐसा होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है मानवता के लिए काम करने वाला होता है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं कितना करूं, मैं क्या भंडारा लगा दूं, क्या मैं ऐसा कोशिश करूं कि मैं ऐसे 100 लोगों को खिला दूं? नहीं, आपकी जितनी सामर्थ्य है, एज योर कैपेसिटी, हर चीज में कहता हूं मैं, कैपेसिटी की जरूरत है और उसी से आपको फायदा होगा। आप ये मत करो कि दूसरा जना जो है पूरा शीर्ष आसन में चला गया तो मैं भी आज शीर्ष आसन में चले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपकी बॉडी क्या कहती है, हाँ, जैसे जैसे आप रेगुलर रेगुलर अपने आप को मजबूत करते जाओगे, चक्रों को मजबूत करते जाओगे, तो अब ये जो चक्र है आपके अंदर फियरलेसनेस को, आपके अंदर की करेज को, आपके स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। क्यों करेगा ये मजबूत? इसलिए करेगा क्योंकि जब आप सबके अपने हो जाएंगे तो आपके अंदर साहस बढ़ेगा ना। अब आगे से डॉगी आ रहा है, आपको डर लग रहा है, तो फिर आपका करेज कहाँ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ जाएगी, आपका, आप फियर हो जाओगे, आप डरोगे। लेकिन जब आपको लगता है कि अरे ये तो सब अपने हैं, इसके अंदर जो आत्मा है वो मेरे अंदर है, इस तरह का जब भाव आएगा, वो अनाहत चक्र के डेवलप होने से होगा। और इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब डेवलपमेंट हो रहा है, पहले 4, फिर 6, फिर 10, 12 पंखुड़ियां बढ़ रही है, यानी कि हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम अपने डेवलपमेंट, अपनी विकास को, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, जो हम हैं, एक व्यक्ति को आप देखते हो, अरे वो तो कुछ नहीं करता है, उसके पास तो पैसा आ रहा है और वो आराम से खा रहा है, घूम रहा है, नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जीने के लिए तो देखो पशु भी जी रहा है, आपके लिए भी भगवान ने बहुत सारी चीज बनाई है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब क्या है कि ऐसे नई एनर्जी के साथ जुड़ना। और जो नई एनर्जी के साथ आप कब जुड़ोगे? जब आप समझोगे कि कैसे आपके चक्र डेवलप हो रहे हैं। अगला चक्र हमारा विशुद्धि चक्र आता है, जिसकी 16 पंखुड़ियां, और इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र, जो है सरस्वती का स्थान है। यानी कि हम कैसा बोलते हैं, हमारे बोलने में कितने लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कितने लोग हमारे प्यार से बोलने में। अब ये नहीं होगा हम कहीं पे वैसे तो बड़ी रूटली बोले और कहीं पे जाके हाँ भैया कैसे हो, नहीं, ये आपकी चक्र के डेवलपमेंट से होगा। चक्र का डेवलपमेंट एक बार में आप, तो व्यक्ति समझ जाता है, हाँ ये अभी तो भाव में नहीं है, प्यार से बोलने की कोशिश कर रहा, वो भी अच्छा है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति जो अंदर से अभी अनाहत चक्र उसका डेवलप हो गया, अब उसका विशुद्धि चक्र डेवलप हो गया, तो जो भी बोल रहा है, अब वो कौन बोलने वाला है, ये सब चक्र के उसमें हम समझेंगे कि हमारी एजुकेशन क्या है, हमारा स्वाध्याय क्या है। तो कबीर, कबीर की कितनी एजुकेशन थी, सूरदास की कितनी एजुकेशन थी, और कितना वो अर्न कर रहे थे, हम सब जानते हैं। और वो व्यक्ति, अब उसका अनाहत चक्र डेवलप होगा नहीं होगा, ये बताइए। कि जो व्यक्ति, कबीर क्या सोचता है कि मैंने जो भी अभी ये काम किया, जो वहां पे वो काम करते थे झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, कि अब इसके बाद, कि अब क्या होगा हमारा, जो पैसा उसका बन गया, उसको भी शाम को उन्होंने जो है चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया कि भाई अब मैं इसको
किसी अपने लोगों के लिए, मतलब वो शाम को अपने पैसे इकट्ठा नहीं करते थे। अपरिग्रह है जिसको हमने कहा है। आज तो हमारे पास 4-4 कारें हैं, कम से कम 20-20 हमारे पास कपड़े हैं, और खाने की इतनी रेसिपी है, तो स्ट्रेस होगा नहीं होगा भैया? स्ट्रेस होगा। तो अब कबीर क्या है, वो शाम को उसको किसी दूसरे के लिए भंडारा करके खर्च कर रहे हैं। और वो कभी जो एक बहुत छोटी सी जगह पे रहता है और केवल झाड़ू पोछा लगा के अपना काम करता है, आज उस कबीर पे रिसर्च हो रही है। रिसर्च क्यों हो रही है? क्योंकि वो विशुद्धि चक्र डेवलप हो गया है उसका। तो इसलिए चक्र के डेवलपमेंट वाले, ऐसा नहीं है कि आपको टीवी में ही दिखेंगे, बहुत अच्छा बोलते हुए दिखेंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए आज रिसर्च होगी। कबीर पे रिसर्च करिए भैया, कबीर ने ऐसा कैसे कहा, एक एक शब्दों में, एक एक लाइनों में, एक एक दोहे में पता नहीं कितना बड़ा सार उसने छुपा लिया। ये क्या हो रहा है? यही डेवलपमेंट है। तो ये जो आपका विशुद्धि चक्र है, ये आपके एक मेटाबॉलिज्म रेट को भी बढ़ाता है। हमारे विशुद्धि चक्र में थायराइड है। थायराइड दो तरह से, हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म हमें हो जाता है। और ये जो है, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो हमारी ये थायराइड और ग्लैंड है, ये ग्लैंड हमारी बॉडी के हार्मोन को भी बैलेंस करने का काम करती है। वैसे तो सारे चक्रों में कोई ना कोई ग्लैंड्स है, लेकिन जब व्यक्ति इसमें बहुत पावरफुल हो जाता है विशुद्धि चक्र में, तो वो भूख प्यास से भी उसको रोक लेता है। एक है जबरदस्ती रोकना, एक की जरूरत नहीं पड़ना। अन्ना हजारे को आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति जो है बड़े आराम से लेटा हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसको, ना भूख है ना प्यास है, क्या है, सब समाज का है। तो ये विशुद्धि चक्र है। अब वो अन्ना हजारे कहीं एक गांव का व्यक्ति, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई महल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जब वो आता है, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि किसने उसका क्या प्रयोग किया क्या नहीं कहा, लेकिन अन्ना हजारे की जब हम बात करते हैं तो विशुद्धि चक्र से भरपूर है। जो बोलता है वो कहना चाहता है, हाँ हाँ मजा आ गया, कुछ नहीं है उसके पास। तो वहां पे कबीर हो सकता है, आज अन्ना हजारे हो सकता है। ऐसे कई लोगों को आज इस बार पद्म श्री मिला है। वो पद्म श्री मिलने वाले वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे। वो व्यक्ति छोटी छोटी जगह पे काम कर रहे हैं। ये सब चक्र के डेवलपमेंट होने से ही होता है। तो ऐसा व्यक्ति, जब हम विशुद्धि चक्र हमारा डेवलप हो जाएगा, वो बारिश में जाएगा, धूप में जाएगा, भूख प्यास में जाएगा, कहीं जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि गर्मी है सर्दी है कुछ भी है। हमने अभी देखा होगा कि एक हिमालय के पर्वत में एक योगी जो है, वो बर्फ में दौड़ता हुआ मस्ती करता हुआ जा रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति विशुद्ध, ये सारे चक्रों के डेवलपमेंट में हो जाता है। जो हमारा लास्ट चक्र है वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो है आपको बौद्धिक रूप से संपन्न करता है। अब मैं इसमें एक बात आप लोगों के साथ में जोड़ना चाहता हूँ। हम सब लोग जितने भी इस फील्ड में आए हैं, या हमारे जिनसे हम एनर्जी जो हम स्वाध्याय करते हैं, या हमारे पास जो डिग्रियां हैं, वो तभी आती हैं जब हम बौद्धिक क्षमता से निपुण होते हैं। लेकिन एक डिग्री आना और एक उसमें शोध करना, एक उसकी बातों को आगे रखना, वो कौन कर सकता है? वो क्रिएटिव वर्क कर सकता है। वो जो रचनात्मक कार्य है, क्रिएटिव वर्क है, वो क्रिएटिव वर्क करने के लिए आपको हर समय आपको अपने ही लेसन पे, अपने ही सिलेबस पे कंसंट्रेट नहीं करना है। क्योंकि अभी हो ही रहा है कि हमारा दिमाग, हमारा सर फटने लगता है, इतना दर्द हो जाता है। नहीं, हम फिजिकली तो कभी कमजोर हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, इतनी पावर दी हुई है। होता क्या है कि जब हम क्रिएटिव वर्क छोड़ के केवल स्वाध्याय को अपने अर्थ में लेने लगते हैं, तब ऐसा होता है। तो इसीलिए हम बौद्धिक क्षमता, और उस समय हम संवेदनशील भी होने लगते हैं, हम थोड़ा भावनात्मक भी होने लगते हैं। लेकिन क्रिएटिव वर्क क्या है कि हमने कुछ दूसरा काम करना। क्या क्या हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं क्या? नहीं। हम क्यों बच्चों के साथ खेले? बच्चों के साथ बच्चा खेलेगा नहीं भाई, ये एकदम ठीक नहीं है। आपका आज्ञा चक्र डेवलप हो रहा है, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो रहा भैया। उसको बैलेंस करना है तो आपको बच्चों के साथ खेलना है। क्रिएटिव बच्चा आपको सिखा देगा क्या क्रिएटिव है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम कुछ कलाकारी कर ले। अरे नहीं आती है ना हमें, हम कुछ संगीत बोल ले। अकेले हैं, कोई भजन गा रहे हैं, और भजन नहीं है तो कोई आप क्या नाम कहा, कोई फिल्मी संगीत गा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन अपना समय हमें देना है, आधा एक घंटा इस क्रिएटिव वर्क में। नहीं तो ये आज्ञा चक्र जो है आपको पागल कर देगा। जो आपको जहां गुड इंफॉर्मेशन, गुड चीजों को देने वाला है, वहीं भी ये आज्ञा चक्र आपको गड़बड़ कर सकता है। और ये, अगर ये चक्र आपका ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हम मानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे सारे ग्लैंड को बैलेंस करता है,
तो एक ही आज्ञा चक्र के बैलेंस होने से और भी आपके चक्र भी बैलेंस होंगे। तो ये जो है आपके लाइफ फोर्स को बढ़ाएगा, ये आपके अंदर के क्रिएशन को बढ़ाएगा, ये आपके अंदर जो एक चेतना की जर्नी है, जो एक यात्रा है आपके अंदर कॉन्सियसनेस की, जो आप चेतन हो रहे हैं, आप अपर हो रहे हैं। अलग अलग कॉन्सियस स्तर के लोग हैं, जो मैं आपको बता रहा था, अलग अलग चक्रों के आधार पे है। हमें कहाँ पहुंचना है, हम केवल खाने पीने रहने में ही क्या हमें खुशी मिलती है? तो तब अगर ऐसा होगा तो आप वहीं पे ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा उसके चेहरे में, उसके उसमें। लेकिन अगर हमको डेवलप करना है तो ये बहुत ही जरूरी है कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद सहस्त्रार चक्र आता है। सहस्त्रार चक्र के बारे में मैं बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक हायर स्टेज है, समाधि के ऊपर की स्टेज है। ये इस स्टेज में हम सब लोग भी पहुंचते हैं, लेकिन हम उस जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे पहुंचने पे हमें क्या क्या महसूस होना है, फिर हम वापस आ जाते हैं। तो इन सब में जो हमारा जो मुख्य पार्ट है, वो मैं जो आपको नाद मेडिटेशन का पार्ट बताता हूँ कि आप कुछ ना करें तो क्या हम, मैंने नाद मेडिटेशन में जो रिसर्च करी उसमें अलग अलग चक्रों की आवाजें तो हैं, जैसे आ उ म, जिसको हम ओमकार कहते हैं। अब हम लोग तो भारतीय जो भारतीय दर्शन है उस आधार पे हम बता रहे कि भाई हाँ ऐसा तो हर समय है, और ये केवल उसमें बताया जा रहा है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो किस आधार पे हुई है? वो आपके एक आवाज, एक साउंड थी। वो साउंड क्या थी? नासा की अभी लेबोरेटरी ने आज से 2 साल पहले देखा, 2 साल पहले देखा, तो वो सूरज की किरणों के पास उन्होंने अपनी नासा ने अपनी लेबोरेटरी को रखा, और वहां पे जो आवाज थी, वहां पे जो आवाज थी, उस आवाज में एक तरह की ओमकार की आवाज थी, ओमकार थी। और ये आप नेट में सर्च कर सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसी तरह से कुन जा करके आपको मुस्लिम ग्रंथों में मिलेगा, आपको इस्लाम में मिलेगा। ऐसे ही आपकी एक तरह की आवाज बाइबल में भी लिखा हुआ है कि एक आवाज हुई, उस आवाज से सृष्टि का निर्माण हुआ। गुरु ग्रंथ साहब में भी आप देखते हैं एक नाम सतनाम ओमकार बोला जाता है। ऐसे सभी रिलीजन में जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो आपकी किसी आवाज से हुई है, और इसी को नाद बोला है। वो जो आवाज अपने आप हो रही है सृष्टि में, उसको अनाहत नाद बोला है। और जो आवाज धीरे धीरे हमारी जो हम टक्कर के साथ करते हैं, टक्कर के साथ वाली आवाज को आहत नाद बोला है। चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, चाहे वो हम म्यूजिक कर रहे हैं तो हमारी जीभ अलग अलग जगह पे बोलती है, क्योंकि 3 अक्षर सिर्फ ये है जो आपके बिना जीभ के इशारे से बोले जाते हैं। आप देखिए आ, ये आ उ ओम जो है आ उ इन तीनों की आवाजों में कभी भी जीभ कहीं नहीं लगेगी। जब आपका स्वर शुरू होगा तब ये जीभ लगेगी। तो ये आवाज हमारी, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये प्राइमरी आवाज है। इसके साथ में मैंने कुछ चीज जोड़ा है, हमारे पास बहुत समय कम है। जो हमने कुछ जोड़ा है वो क्या है कि अब ये आवाज क्या हो गई, एक होगी अनाहत जो अपने आप हो रही है, ब्रह्मांड में हो रही है, जिसको ओमकार कहा है, या अन्य धर्मों में अलग अलग धर्मों के हिसाब से बोला है। दूसरा है आहत नाद, जो हम 2 टक्करों से हम ताली बजाते हैं, हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बनाते हैं। इस प्रकार की 9 आवाजों के बारे में भी नादानुसंधान में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो मैंने अपनी रिसर्च में कहा है कि इसके अलावा है प्राकृतिक नाद। प्राकृतिक नाद जो हो रहा है वो भी जो है हमारा, वो नेचर से हो रहा है। जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप प्राकृतिक नाद को सुनना प्रारंभ करें। उसके लिए आप मेरे नवयोग यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो उसमें हमने एक पूरा कि कैसे करके हम नाद तक पहुंचना है, उसकी प्रारंभिक जानकारी मैंने लिखी है। और इस तरह से जब हम प्राकृतिक नाद में जाएंगे तो अब नाद कैसा होना चाहिए? एक तो आवाज है, जिसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं गाली दे लो कोई बात नहीं, कुछ लोग जो है अब्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ में, किसको? अपने प्यारे दोस्तों को, अपने खुद के लोगों को, उनको बुरा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन वही गाली आप किसी दूसरे को देंगे तो बुरा लगता है। लेकिन जब जब आप अपने मुंह से ये सब चीजों को निकालते हैं जो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई है, तो आपके बहुत सारे डेवलपमेंट को रोकता है।
ये ठीक नहीं है। जब हम किसी को भी किसी तरह से भी हम करेंगे तो ये जो शब्द भ्रम है, इसमें आप बोलोगे, जैसे मैं ऐसा अपने 2 दिन 3 दिन के जो वर्कशॉप है उसमें बताता हूँ, जो हम नवयोग हीलिंग का वर्कशॉप लेते हैं, कि आप जो है अपने को आप पॉजिटिव रहो। सुबह उठ के कहो, आहा मेरे से अच्छा तो कोई है नहीं इस दुनिया में, भगवान, वाह भगवान आपने मुझे क्या दिया है, खाने को दिया, पहनने को दिया है, धन्यवाद भगवान। आप सुबह उठ के इस नाद का उच्चारण करिए, देखिए आपकी जिंदगी बदलती है या नहीं बदलती है। ऐसी है, आपके पास पैसे की कमी है तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सीधे को मेरे को 1 करोड़ आ जाए, नहीं, आपकी पॉसिबिलिटी कुछ होनी चाहिए। हाँ, उसके आधार पे बोलिए, भगवान मुझे इतनी मदद करो। तो ये सब आना ही है, क्योंकि जैसे ही आप इस कॉस्मोस से जुड़ेंगे जो आपके अंदर है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कहते हैं कि हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है और हम उस ब्रह्मांड के अंदर है। तो जो आप बोलोगे वो तो होना ही है, लेकिन उसको नाद के माध्यम से आपको पहुंचना है। तो ये जो आऊ मो है, बाकी आप उसमें देखेंगे। इसके अलावा हमारे जो नाद है, जो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको मूलाधार चक्र को डेवलप करना है तो उसमें लम की आवाज आएगी, तो उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, लम। लम लम। जब हम इस आवाज को करते हैं तो आप देखिए मूलाधार के चक्र के पास में आपका जो चक्र है वो डेवलप होने लगता है। तो इसको हमने 11 से लेके 21 बार तक करना है, फिर शांत होकर सूक्ष्म रूप से इस आवाज का मनन करना है। आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। डेवलप का मतलब बैलेंस होने लगेगा, ठीक है। ऐसी स्वादिष्ठान चक्र में वम की आवाज है, वम। फिर ऐसी मणिपूरक रम, अनाहत यम, विशुद्धि हम, और आज्ञा चक्र ओमकार है। और ओमकार में भी अगर ये सब आप ना भी कर पाए तो जो आकार है आ, जब हम करते हैं तो हमारा नीचे नाभि के नीचे से चक्र में आवाज आती है, जो स्वादिष्ठान और आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करता है। जब हम ऊ की आवाज करते हैं तो आपका ये अनाहत और विशुद्धि आपका बैलेंस होता है। जब हम मौ की आवाज करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार बैलेंस होता है। तो इस प्रकार हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब जब हम इन सबको बैलेंस करते हैं तो हमें रिलैक्स फील होता है। तो मेरा सब लोगों से ये कहना है कि ये जो हमारा नाद मेडिटेशन है, ये 125 प्रकार के जो अलग अलग तरह के पूरे विश्व में फैले वाले ध्यान है, उनमें बहुत इजी है। आपके जो हठ योग प्रदीपिका उसमें और हठ योग के ग्रंथों में इसका नादानुसंधान करके पूरा परिचय दिया हुआ है। और मैंने भी इसमें जो भी कुछ किया है, एक तीसरे प्रकार का नाद जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो है विकृत नाद। विकृत नाद का मतलब यह है कि जो हम नहीं सुनना चाहते लेकिन हमने सुनना पड़ रहा है। और वो विकृत नाद क्या है? वो है एयरप्लेन की आवाज, वो है बसों की आवाज, वो है पंखे की आवाज, वो है आपके फ्रिज की आवाज। जो अनचाहे रूप से आप उसको नहीं इकट्ठा करना चाहते, वो आपकी बॉडी में जा रहा है। इसीलिए आप बहुत ज्यादा नहीं चाहते हुए भी आप जो है गुस्सा हो जाते हो, एंगर हो जाता है आपके अंदर। आप चाहते हो ऐसा कैसे हो गया, बाद में हम उसमें पछताते भी हैं। तो गिल्टी में नहीं जाना है, आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, जो है धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं देखता हूँ कैसे क्वेश्चन के पास में आऊंगा। 1 मिनट, 1 मिनट। जी नवदीप जी, जी बहुत बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। और क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था, हाँ अ, ये पैदा उसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि नाद योग और मंत्र योग दोनों में क्या डिफरेंस है। जी, ये क्वेश्चन में देख रहा हूँ। नाद योग और मंत्र योग जो है,
नाद का मतलब क्या है कि हम उस साउंड से जुड़ रहे हैं जो सृष्टि में दिया है, और उस सृष्टि के आधार पे हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। अगर हम केवल मंत्र योग की बात करते हैं तो मंत्र योग नाद के रूप में हम इसको रख सकते हैं, लेकिन मंत्र में अब इसको हम जो स्वर विज्ञान, वो उसमें क्या नाम, उच्चारण व्याकरण विज्ञान में लेके जाते हैं, तो जो व्याकरण यानी कि जिसको हम कहते हैं शब्द नाद, शब्द ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, उस आधार पे हम मंत्रों को रख सकते हैं। क्योंकि मंत्रों के जो आधार है, मंत्रों का जो प्रभाव है हमारी बॉडी में, वो पड़ता है कि जब हम उस शब्द भ्रम में जाते हैं। और शब्द भ्रम में जाने पे आप जैसे एक मंत्रों का उच्चारण होता है, क्योंकि संस्कृत में किसी भी जब उच्चारण करेंगे तो उसमें आ उ म हम की आवाज जरूर आती है, और इसको करने से क्या होता है कि हम जल्दी डीप में जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ओम नमः शिवाय, हम ऐसे बोले ओम नमः शिवाय, हमने ऐसे बोला, ओम नमः शिवाय हमने बोला, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, क्योंकि ये नाद से जुड़ा है। इसी को हमने बोला शिव जी की जय हो, जय शिव जी की जय हो, अगर हमने ऐसे भी बोला तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब हम स्वर की बात करेंगे, जब हम रिलैक्स होने की बात करेंगे, तो मंत्रों में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये हमें जी, अगला क्वेश्चन है, जसबीर जी का नाद एवं ध्यान में क्या अंतर है? नाद नहीं, नाद ध्यान का एक प्रकार है, ध्यान के कई प्रकार हैं, उसमें एक नाद है, नादानुसंधान करके हठ योग में है। अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही जैसी चीज है। ध्यान, बेस्ट टाइम ऑफ द चैंटिंग ऑफ चक्रास मंत्रास, द बेस्ट सीक्वेंस प्लीज। हाँ, ये जो चैंटिंग का टाइम है, ये मैंने कहा कि जैसे हमारा जो अलग अलग इसमें जैसे हम मूलाधार चक्र है, तो वहां पे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व की मजबूती, यानी कि आप पृथ्वी तत्व की मजबूती करते हैं जब हम बात करते हैं मूलाधार चक्र की। तो इसमें टाइम क्या होना चाहिए, टाइम के लिए जरूरी है कि हम किसी शांत समय होना चाहिए जब आप एकदम रिलैक्स्ड हो। लेकिन जब हम थेरेपी में आ जाते हैं, जिसको हम आजकल योग चिकित्सा जब हम बोलते हैं, तो योग चिकित्सा में जब हम आते हैं, तो उसमें ये जरूरी है कि हम जो है क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन, हाँ, कि इसको हमने कब करना है। तो साइलेंस से ही नाद की शुरुआत होती है। अब सब लोग समझ लीजिए कि जो साइलेंस है, जब आप किसी बड़ी ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे कोई आवाज नहीं है, वो भी, उसकी भी स्टार्टिंग क्या है, नाद ही है। क्योंकि जब कुछ नहीं था तब नाद था, कहते हैं जब कुछ नहीं था तब नाद था, इसलिए तब, और इसीलिए जब हम नाद का उच्चारण करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, थोड़ा शांत होना चाहिए। लेकिन जब हम चिकित्सा में जाते हैं तो थोड़ा बहुत वो चल सकता है। हम अपनी एक मुद्रा बनाते हैं, अपने हमने नाक को, कान को, आंखों को बंद कर लेते हैं, जितने भी हमारी, जिससे हम अटैच हो रहे हैं बाहर की ओर, बाहर को देख रहे हैं, जो हमारे एनर्जी को डिस्टर्ब करने की चीजें, उनको सबको बंद कर लें। तो उस आधार पे भी हम चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग का जो टाइम है, वो हम 11 से 21 मिनट 21 बार करते हैं एक एक को, जो हम ओमकार की चैंटिंग कर रहे हैं या हम मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हैं। और इसको हम जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम अगर हम देखें कि फायदा किसमें होगा, तो फायदा, अगर आप तुरंत चले गए तो आपको 5 मिनट में भी फायदा होने लगेगा इसमें। और अगर हम आधा एक घंटे तक करते हैं, तो कई लोग जो है, इसको आप करना कैसे है, करने में ये ध्यान दीजिए कि आपने पहले मंत्र चैंटिंग करनी शुरू करी, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप 11-21 के बाद थक गए, आप चुप हो जाइए। अब आप रिपीट करेंगे अजप जप के रूप में। अब आप रिपीट कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, आप फिजिकली नहीं बोल रहे, तो आप जो है उसमें धीरे 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 वहां पहुंच जाएंगे। जी और कोई क्वेश्चन है? जी, बहुत है। निताशा गर्ग जी का पूछना है कि क्या सभी चक्रों के बीज मंत्रों का एक साथ हम उच्चारण कर सकते हैं, मतलब एक साथ ही हम उन सभी को जागृत कर सकते हैं, करना चाहिए? हाँ, ये आधार पे है कि हमारी प्रैक्टिस कहाँ से शुरू हुई है। अगर हम, हमारी प्रैक्टिस जो है, अगर चक्रों की शुरू हो गई है, तो हम एक दिन में कई चक्रों को भी जागरण करने का काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें मूलाधार चक्र से शुरुआत करनी चाहिए। और जो जो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, उस आधार पे जो लगता है कि ये बैलेंस नहीं है, आज मेरा अनाहत चक्र बैलेंस नहीं है, तो हम उसका मंत्र जाप करेंगे, उसका वो आगे करेंगे। और अगर हमारे पास समय है
तो क्यों नहीं, हम तो घंटे घंटे बैठ सकते हैं, 3 घंटे का मिनिमम समय एक आसन के लिए बोला है, अब हम उतना बैठ नहीं पाते। और दूसरा ये बात बहुत जरूरी है कि हमें जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए और हमारी ब्रीदिंग शांत होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रीदिंग शांत नहीं है, यानी कि आप सबसे पहले अनुलोम विलोम जरूर कर लीजिए। अनुलोम विलोम एकदम धीमे 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 गति में आप 5-10 मिनट कर लीजिए। उसके बाद जब हम चक्रों का मेडिटेशन करेंगे या जो भी हम अफर्मेशन देना चाहते हैं अपने लिए, किसी आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आप अपने वैसे दे, लोग कहते हैं कि इमेजिनेशन दीजिए और अफर्मेशन दीजिए तो काम होता है। आपने बहुत बहुत मोटिवेशन लेक्चर जब सुने होंगे कि आप करो ऐसा तो हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। वो होता क्यों नहीं है? वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि आप बोल तो रहे होते हो लेकिन आपकी इमेजिनेशन वहां पे नहीं होती है। और ये दोनों को करने के लिए अनुलोम विलोम को क्या नाम, उज्जाई प्राणायाम को लगातार करने की जरूरत है। जब आप शांत हो जाएं, आपको लग रहा है कि दोनों स्वर आप बराबर हो गए हैं, सुषुम्ना चलने लगी है या आप रिलैक्स होने लगे हैं, तब उसके बाद आप मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो उसका फायदा बहुत होगा। जी, और Can we practice the short time of this technique so we can learn on it? हाँ, शॉर्ट टाइम की प्रैक्टिस ओमकार है। ओमकार हम लोग करते हैं लेकिन उसको प्रॉपर नहीं करते हैं। अगर हमारी ओमकार में भी जरूरी है कि लय अच्छा आना चाहिए, क्योंकि इसमें लय भी ताल की भी देखी जाती है। तो लय में क्या है, एक हम लंबा कर रहे हैं, ओ, अब ये रिदम में हो रहा है तो इसका फायदा होगा। अब एक इस तरह से हम गड़बड़ करेंगे तो उसमें, इसके लिए आप शॉर्ट प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, इसको ओमकार को इस तरह से बोल सकते हैं बिना छोड़े हुए, फटाफट ऐसे, जी, ओम 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 ओम। अगर आप अभी मेरे साथ बोलिए तो देखिए आप 2-3 मिनट में आपको एनर्जी फील होगी। सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलना शुरू करिए, केवल 2-3 मिनट में, 2 मिनट बोलना है केवल। ओम 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 ओम। और इसमें आप वाइब्रेशन को फील करिए, देखिए नाभि के नीचे से वाइब्रेशन आ रहा है, फिर आपके पेट में आ रहा है, मणिपूरक चक्रा में, और उसके बाद ऊपर मस्तक तक जा रहा है। ओम 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 ओम। ये जो हमारी जो प्रैक्टिस है, जिसको हम ओमकार नाद प्रैक्टिस हम कह रहे हैं, इसको मैं 2-3 प्राणायाम की बात कराता हूँ। और ये आप जो है मेरे नवयोग चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। इसमें और है, if there is problem in spine, that what then what to do। स्पाइन में प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है कि आपकी केवल स्पाइन की प्रॉब्लम के कारण है। हो सकता है कि आपका मणिपूरक चक्र बहुत गड़बड़ हो, जिनका पेट गड़बड़ रहता है, जिनका कोर गड़बड़ रहती है, कोर की स्ट्रेंथ अगर गड़बड़ होगी तो आपको बैक पेन होगा ही। इसीलिए आपने बहुतों को देखा हुआ है, वो अपना ठीक ठाक काम कर रहे हैं लेकिन अचानक उन्होंने बाल्टी उठाई और उनको स्लिप डिस्क हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनका पेट मजबूत नहीं था। उनको मणिपूरक चक्र को मजबूत करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप स्पाइन की भी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप जब इसका चैंटिंग करेंगे तो उसका भी आपको फायदा होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ पंच महाभूत तत्व इन चक्रास? हाँ, ये सारे जगह पे आपके चक्र का रोल है। और ये पंच महाभूत से हमें, देखिए ये बड़ा सूक्ष्म चीज है लेकिन समझने की बात है कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। तो पंच महाभूत से जब हमारा शरीर बना है तो पांचों तत्वों को बैलेंस होने की जरूरत भी है। तो इसीलिए जो मूलाधार चक्र है आपका, ये आपका पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व चाहिए आपके चेहरे में, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है जो आपके जल तत्व को बैलेंस करता है। इसके बाद ऊपर मणिपूरक चक्र है, आपकी अग्नि को बैलेंस करता है। इसके ऊपर अनाहत चक्र है, आपके वायु को बैलेंस करता है। विशुद्धि चक्र है जो आपके आकाश तत्व को, शब्द जिसको हम बोलते हैं, उसको बैलेंस करता है। तो ये जरूरी है कि जब आप इस नाद का आप उच्चारण करेंगे तो उसके कारण आपके इन चक्रों का भी बैलेंस होना ही है। जी, लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। अरविंद कुमार जी का है कि पिगमेंटेशन के लिए कौन सा चक्र हेल्पफुल रहेगा। और एक हमारी पार्टिसिपेंट है रचना शर्मा जी, वो कहती हैं शायद मेरा आज्ञा चक्र जो है वो
जागृत है, क्योंकि मैं सो नहीं पाती हूँ और कम सोती हूँ, तब भी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए अब मैं क्या करूँ? ये जो पिगमेंटेशन की जो हमने बात करी है, ये भी आपके मणिपूरक चक्र के कारण है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि हमारी बहुत सारी वृत्तियां प्रारब्ध से मिलती हैं। आप बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आप बड़े बड़े योगियों को भी आप देखेंगे कि वो कुछ कुछ चीजों में बहुत बीमार थे। तो आपकी अगर प्रारब्ध का काम है तो उसमें समय लगेगा आपका, और और उसके कारण आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। आप चाहे आप गांधी जी को बात बात करिए, चाहे रामकृष्ण परमहंस की बात करिए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात करिए। रामकृष्ण परमहंस भी बहुत खाने का काम करते थे, उनको भी कुछ ना कुछ बीमारी थी। और लेकिन वो लोग क्या है, इन चक्र को बैलेंस करने के बाद ठीक हो जाते थे। तो पिगमेंटेशन के लिए आपका मणिपूरक चक्र जो है वो रहेगा। और जो आपने अगला क्वेश्चन किया है आज्ञा चक्र की बात, आज्ञा चक्र लगभग हम सब लोगों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, जो मैं आपको बताता ही हूँ। क्योंकि क्रिएशन उसी से आता है, जो सोच है, जो स्ट्रेस है। अब हमने रिक्रेशनल स्ट्रेस की बात में क्यों कर रहा हूँ, कैसे आप बैलेंस करोगे उसको? जब आप ये मोबाइल को छोड़ोगे, जब आप लैपटॉप को छोड़िए, टीवी को छोड़ के आप क्या करोगे, बच्चों के साथ खेलना शुरू करोगे, जो सबसे इजी है। सबसे इजी इसलिए कि आजकल आप बाहर नहीं जा सकते। आपको 1 घंटा खेल करना है, जिसका आपको कोई, जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म, जिसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन वैसे आपको बहुत फायदा होने वाला है आपकी उसको रिलैक्स करने के लिए। दूसरा, आप मूलाधार चक्र पे भी मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि बहुत सारी डिजायर आपकी है जो फुलफिल नहीं हो रही है। और प्राणायाम में भ्रष्टिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और तभी आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। डॉक्टर नवदीप जोशी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ बताया, इतने थोड़े समय में कोशिश की, और हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी इसमें बहुत अच्छा लगा। और कोई भी क्वेश्चन होंगे नवदीप जोशी जी से, तो हम उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा देंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो आंसर ज़रूर होगा। और कुछ लोगों ने कुछ किताबों के नाम मांगे हैं, अपार्ट फ्रॉम हठ प्रदीपिका, योग हठ प्रदीपिका, ग्रहण संहिता, उसके अलावा कल भी स्पीकर से कुछ लोगों ने बुक्स मांगी थी, जो हमने उनको प्रोवाइड करा दिए थे उनके हिसाब से, जो हमें स्पीकर ने सजेस्ट किया था। तो सर आप भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्या किताबें इन लोगों को, हम पार्टिसिपेंट्स को पढ़नी चाहिए, ताकि हम लोग और इस चीज़ को अंदर जान सकें। सो धन्यवाद आपका, आपका इतना सारा मूल्य वक्त आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, बहुत प्रोफेसर हैं, आप सब लोगों ने मेरी बात को समझा और उसको समझ के कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। मेरे पास जितनी बुद्धि है, जितना मैंने इसकी साधना करी है, मैं आपको सब बताऊंगा, क्योंकि ये सब ह्यूमैनिटी के लिए ही है, और हम सब लोग क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं। और मैं देश बंधु कॉलेज का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी बड़े मंच में उन्होंने मुझे बुलाया, और अंजू मैम का और विक्रम सर का, और आपके जो हमारे अग्रवाल सर हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं, कि इस तरह से एक बहुत बड़ा व्यापक जो प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है, और इतने व्यापक रूप से आपने जो पूरे देश विदेश के लोगों को जोड़ा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इस समय हम सब लोगों को बैलेंस होने की जरूरत है। हम जितना हम बैलेंस होंगे, उतना मुझे लगता है कि हम भी बढ़ेंगे, हमारा परिवार भी बढ़ेगा, और ये पूरा विश्व बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। और अब मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे साथ हमारे सेकंड स्पीकर डॉक्टर आराधना सिंह जी को, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हैं। प्रेजेंटली शी इज़ वर्किंग विद गोल्फ कोर्स, दिल्ली गोल्फ कोर्स, आर्मी गोल्फ कोर्स। So I would like to welcome once again Dr. Aradhana ji, and floor is all yours. We are waiting for your lecture. Thank you. Thank you so much. Good morning, everyone. I'll be talking about mental health, how to maintain it with simple tips. Please allow me to share the screen. Dr. Anju, please allow me to share the screen. Dr. Aditya, can you do it? Dr. Monica or Dr. Aditya? मैम आप स्क्रीन शेयर करिएगा एक बारी। Yes.
So, what is mental health and why is it important? Good mental health is a state of well being in which an individual realizes his or her own abilities and is able to cope with the normal stresses of life. It is all about how we feel inside, it affects how we think and act. It includes emotional, psychological, and social well being. It also determines how we react to others, make healthy choices, and how we respond to daily life challenges. Mental health is said to be good when you are able to work productively, realize your potential, and you are able to contribute to the community. Mental health is important in every single second of your life till the last breath. The way you feel good when you are physically healthy, in the same manner, you feel as if your life is in your control when you are mentally healthy. Good mental health allows you to grow and try new things. Being mentally healthy prepares you for the challenges of life, personally and professionally. How do we maintain good mental health? There are various ways by which you can do it. Mental health is often challenging to preserve in our modern gadget filled lives. And since lockdown is opening, we are again going to have hectic and busy days, which will make it slightly difficult for us to have great mental and emotional health. But I'll give you very easy and simple techniques which can be used. First, we all need to understand that to maintain this, we need to establish a balance between various aspects of your life. These aspects are social, spiritual, emotional, physical, economic. When you have balance in these aspects of your life, it becomes easy for you to maintain good mental health. First is food. You are what you eat. Good nutrition is the key to good mental and physical health. The kind and amount of food you eat affects the way you feel and how your body works. Proper nutrition increases blood flow to your brain, protecting brain cells. Your food choices affect your mood and mental health. This is sometimes called the food mood connection. Everything you eat becomes a part of not only your inner being, but the outer fabric of your body as well. Good food is one of the most powerful and yet least used weapons in the fight against stress and unhappiness. Eating brain friendly food can make a massive difference to your mental and emotional well being. Let's check the list of foods that you can eat. Nuts, especially walnuts and almonds. Berries, especially blueberries. Eggs, including the yolk. Beetroot, amla, carrots, tomatoes, and broccoli in veggies category. Apple, banana in fruit category. Dark chocolate, but not more than one square. Seeds, especially flax seeds and pumpkin seeds. Yogurt, and one spoon of pure virgin coconut oil added to your coffee or your juice every day. List of foods that you are not supposed to eat. First is white sugar. There are strong links between mental health challenges and white sugar consumption. It is a complex relationship, but ultimately, cutting back on your sugar will help to improve your mental health. I will recommend quitting sugar completely. Instead of sugar, you can use substitutes like shakkar, khan, or honey, and cut back on the following foods too: white bread, all all-purpose flour, also known as maida, pasta, pizza, burger, no aerated drinks or coffee. You may have one coffee once in a day. I'll prefer without sugar. No alcohol, cigarettes, or drugs. It completely messes up your brain and then your life. You might think of it as an adventure, and sometimes you just wanted to taste it or tried it due to peer pressure. But it's too dangerous to play with for your brain health. And last but not the least, reduce your eating out as much as possible. You should not eat more than once. Second is exercise. Exercise is defined as any movement that makes your muscles work and requires your body to burn calories. Exercise is not just about aerobic capacity and muscle size. You all know how exercise is beneficial to your physical health. It improves your physique, trims your waistline, makes you more attractive, increases your energy levels,
and even add years to your life. But what you all don't know is how beneficial it is to your mental health. There are many types of physical activity, including swimming, running, jogging, walking, dancing, and designer exercise called gym. People who exercise regularly tend to do so because it gives them an enormous sense of well being. They feel more energetic throughout the day. They sleep better at night. They have sharper memory and feel more relaxed and positive about themselves and their lives. Regular exercise can have a profoundly positive impact on depression, anxiety, ADHD, and more. It also relieves stress, improves memory, helps you sleep better, and boosts your overall mood. The best part is you don't have to be a fitness fanatic to reap the benefit. Research indicates that moderate amount of exercise can make a difference no matter your age or fitness level. The first benefit of exercise is that it makes your memory and thinking sharper. The same endorphins that make you feel better also help you concentrate and feel mentally sharp for tasks at hand. Exercise also stimulates the growth of new brain cells and help prevent age-related diseases. It increases self-confidence and boosts your self-esteem. Regular activity is an investment for your body, mind, and soul. When it becomes a habit, it can foster your sense of self worth and make you feel strong and powerful. You feel better about your appearance. Exercise results in the betterment of your social relationships. When you are happy, you behave better with people. You listen to them. And when you have better energy levels, you can have better relationships as you'll have more energy to invest in people. Exercise also results in boosting up your energy levels. When you exercise, your heart rate increases. Increasing your heart rate several times a week will give you more power to get up and go. Start off with just a few minutes of exercise per day and increase your workout as you feel more energized. You get better sleep at night. Even short bursts of exercise in the morning or afternoon can help regulate your sleeping patterns. If you prefer to exercise at night, relaxing exercises such as yoga or gentle stretching will help you sleep very peacefully at night. Stronger resilience. When you face mental or emotional challenges in your life, exercise can help you cope in a healthy way instead of resorting to methods such as alcohol, drugs, or other negative behaviors that will ultimately make your symptoms worse. Exercise can help you to boost your immune system and reduce the impact of stress. Now you must be thinking how much exercise is enough. Well, to start with, you can do 10 to 15 minutes of exercise and slowly and gradually you can increase the time. The next thing that can help you to increase the quality of your mental health is water. You must be wondering, you must be wondering water, how drinking this tasteless, colorless, odorless drink can improve your mental health. Well, you'll be amazed to know that water consumption and brain functions are closely linked. Often people drink this vital resource to take care of their kidneys, liver, and even their heart. However, drinking water affects your brain in ways you might never have imagined. Your brain is 75% water. That means it needs a lot of this vital substance to keep on functioning in an effective way. If you don't drink enough water, it can cause numerous symptoms, including problems with focus, memory, brain fatigue, brain fog, headaches, sleep issues, anger, depression, and many more. Every function in the body is dependent on water, including the activities of the brain and nervous system. Now the question arises, how much should your water intake be? A normal person should have 7 to 8 glasses of water a day, but a lot depends on activity levels, size, body mass, weight, etc. The best thing you can do to your brain is to keep sipping water the whole day. Keep yourself hydrated. That will harmonize your body from the inside outside both.
Let's see how your brain works when you drink enough water to hydrate yourself. Your brain will work faster. Your brain needs to be properly hydrated to function effectively. The cells in the organ need a delicate, precise balance of water and other elements to work the way it should. When you are breathing, you are losing moisture with each breath. So when you wake up in the morning, you are newly dehydrated as you have not had water in the last 7 to 8 hours. So you should have water first thing in the morning as soon as you wake up. Your concentration levels are affected if you don't have enough water. We generally don't usually notice dehydration. We only notice in extreme conditions. Once you have started feeling dizzy or when your skin has dried out. You might not realize it, but you lose the ability to focus because your brain is conserving its resources. Your memory slows down. It becomes more difficult to concentrate and you can't react as quickly to stimuli. You need to have water around you all day and you should keep sipping it. Otherwise, your brain might have to suffer the consequences. It helps to balance your mood and your emotions. Drinking water has a big impact on your emotions. It increases your blood flow and oxygen to the brain and removes toxins and dead cells. It also balances your chemical processes and does a kind of mental restart. But drinking 2 to 3 glasses at a stretch will not solve any problem. Point is to stay hydrated throughout the day. This balance will also help regulate your stress and anxiety. It will help you in having a good sleep at night. Drink half a glass of water before you go to sleep. This will help you in having a good sleep. Water increases the blood flow to your brain. This boosts your brain's oxygenation and hydration. It also calms it down. Water also removes waste substances from your brain. Once you make it a habit, you will understand how much of a difference it can make. It also results in the improvement of your memory. Having water at regular intervals can really improve your memory, no matter how slight dehydration it is. Instantly causes a lot of dysfunction in your brain. You'll be surprised to know that this can also affect many basic areas of your survival. It reduces your cognitive ability. That basically means that it's harder for you to memorize things, infer information, make conclusions, and create long term memories. I hope all this information will help you to understand the importance of this insignificant looking liquid for your brain. Positive affirmations. Having a positive mindset can do wonders for your attitude. An optimistic mindset will help you in having better relationships, better career, and more happiness. So, better mental health can be achieved through writing positive affirmations. When you think about something, it causes your brain to send signals and it releases neurotransmitters. These chemicals control all your body's functions, including your mood and feelings. Over time and with repetition via neuroplasticity, it's been proven that your thoughts change your brain, your cells, and even your genes. Positive affirmations are thoughts, generally one line sentences you intentionally create. Benefits of positive affirmations. Positive affirmations are used to challenge negative, depressing, or anxiety producing thoughts and beliefs. Affirmations can influence your thinking patterns, behavioral habits, moods, and finally will improve your mental health. The purpose of positive affirmations is to affirm to ourselves that things are good, even if you don't necessarily feel that they are at that particular time. Positive affirmations have the power to transform lives. They have great contributions that include cognitive behavioral therapy, treatment for depression, among many more. Positive affirmations are used in rehabilitation programs. Carefully constructed positive affirmations can rewire our brains to break negative thought patterns. The way we exercise our body for better physical productivity, in the same manner, positive affirmations are used to exercise our brain for better mental health. Positive affirmations can significantly increase feelings of hopefulness.
Research proved that positive affirmations can help you perform better at work. Spending just a few minutes thinking about your best qualities before a high pressure meeting can calm your nerves, increase your confidence, and improve your chances of successful outcome. Just imagine you are whining the whole day about something or any event or person. The kind of hormones which are released because of this not only destroy your physical health but also your mental health. But if you replace all these negative affirmations with positive statements, you will see a huge change in your physical and mental health. In one study, it was seen that positive affirmation exercises boost problem solving abilities of chronically stressed subjects to the same levels as those with low stress. Lastly, adding a positive mantra to your routine can work for anyone because when you practice it every day with full belief and also you are visualizing it, you will see tremendous benefits in your emotional and mental health. So, what is the formula of making positive affirmations, which will be easily taken by the brain to produce positive results? Let's decode the language of the brain to make affirmations simple. Positive affirmations are always in the present tense. Never ever use past or future affirmation. Your brain only responds to present tense statements. Secondly, affirmations can also be positive. We cannot use words like don't, can't, or won't. Any negative statement cannot be used in positive affirmations, as the brain overlooks the no, don't, won't. So the results will be exactly opposite of what you are expecting. Positive affirmations are spoken as statements of facts and truth. Statements that contain words like might and could are not powerful statements, so refrain from using these negative words. Our brain is a complex and complicated network of information that is always sending and receiving thoughts at lightning speed. Every act of ours is really a set of complicated communication between cells called neurons. Because of the amount of information our brain has to process every single second, it takes everything we think and say. When you understand how this complex communication works, you begin to see how that affects your emotions, behavior, and even physical well being. Our brain basically works on the basis of what we feel, think, and do. And when we begin to understand this and control our thoughts and replace the negative thoughts with positive ones using positive affirmations, we can make significant changes in our brain health. Now we'll create few affirmations which can be very useful for your brain health. These are general affirmations and can be used by everyone. You may also write specific affirmations according to your goals in life. For that, you can contact me also. Number one, I'm confident. When you say repeatedly, I'm confident, it removes doubts, uncertainties, and increases self confidence that will improve your productivity at work and social relationships. Number two, I'm fearless. When you say this statement, I'm fearless, this statement communicates to your brain that you are capable of achieving whatever you want and nothing can stop you. I'm limitless. When you say I'm limitless, it says your brain is healthy, strong, and at peace and ready to learn new things. To see a change in your desired area, you must repeat affirmations for at least 21 days. And one very important rule is to write it at least 50 times. Be very regular to reap the full benefits of writing affirmations. Correct time of writing affirmations is early in the morning when you wake up and at night right before you are about to sleep. Sunshine, one of the best mental health tool which is free, abundant and accessible to all is sunshine. You must be itching to know how come sunshine is so beneficial to our brain health. Most of us have only heard how sunshine can be harmful to our skin. That is also correct. Too much exposure to sunshine can be bad for your skin.
It can also cause cancer, but the right amount can have lots of benefits to the brain. The sun is much more than its potential pitfalls and can do plenty of good things to your brain health. Let's look at some benefits of sunshine. Better mood. Sunlight helps in releasing a hormone called serotonin. Serotonin is associated with boosting mood and helping a person feel calm and focused. Without enough sun exposure, your serotonin levels can dip. Low levels are associated with a high risk of major depression with seasonal patterns. Getting some sun increases your serotonin levels and helps you avoid seasonal affective disorder, also known as SAD. Sun exposure can also help people deal with anxiety, depression, especially in combination with treatment. Sunlight can also help better your sleep quality. Serotonin that you soak up from the sun does more than boosting your mood. It can also help you to sleep better at night. Working in tandem with serotonin is melatonin, a chemical in your brain that lulls you into slumber and one that sun also helps your body produce. So, if you are having a problem in catching a good night's sleep, adequate exposure to the sun might help. Sun makes you more alert as well. Adding sunshine into your routine will make you feel more alert during the day and sleepy at night. That is, making you happier and productive about your work. Sun exposure also helps boost your energy levels. A moderate amount of sunshine, if taken regularly, increases your energy levels, thus increasing your self-esteem and making you more joyful. It also lowers your blood pressure when sunlight hits your skin. Your body releases something called nitric oxide into your blood. This compound brings down blood pressure and improves heart health. I'm sure all of you will go out for some daily dose of sunshine to reap all the benefits. Meditation. Meditation is the oldest tool used for maintaining good mental health. There are numerous benefits of practicing meditation. Meditation, in a way, is like exercise for your brain. Researchers of MGH found that meditating for only 8 weeks actually significantly changes the brain's gray matter, a major part of central nervous system that is associated with processing information as well as providing nutrients and energy to neurons, thus improving the overall performance of the brain. Another research consisting of 10 participants who took a mindfulness based stress reduction program for 8 weeks. Before and after the program, the researchers took MRI of their brain. After spending an average of about 27 minutes per day practicing mindfulness exercise, the participants saw an increased amount of gray matter in the hypothalamus, which helps with self awareness, compassion, and introspection. Following are the benefits you will see after meditation. Better emotional health. Regular practice of meditation can bring improvement in self image, positive outlook, and decreased depression. Inflammatory chemicals called cytokines, which are released when you are stressed, can affect mood, can lead you to depression if the stress persists for a long time. Meditation increases your optimism and positive attitude. It increases your self-awareness. When you practice meditation, you have a better understanding of yourself that helps you in becoming a better version of yourself. You have a better understanding of your thought patterns so you can mold them more constructively. Meditation also improves your attention span. Regular practice of meditation is like weightlifting for your attention span. It increases the strength and endurance of your attention. It enhances your memory power. Meditation helps in clarity and good memory power. It can also fight age related memory loss and dementia. It makes it easier for you to deal with stress and negative emotions.
Meditation can help reduce stress levels, depression, and anxiety, along with giving mental strength to deal with pain. Mindfulness meditation, in particular, might help people deal with psychological stress. Stress causes increased levels of cortisol hormone. Because of this, you'll have disturbed sleep, depression, anxiety, high BP. You'll be you'll feel fatigued and will have cloudy thinking. If you want to get rid of these handicaps in life, go for meditation. It also helps to control your anxiety. Regular practice of meditation reduces anxiety. It will also reduce symptoms of phobias, social anxiety, paranoid thoughts, obsessive compulsive behaviors, and panic attacks. Meditation changes your brain in a way which helps you get along with other people. Practicing meditation over 2 weeks shows much more developed brain regions associated with empathy. It helps you to fight addictions. Lots of studies have shown that meditation can help people with emotional stability, which improves and increases their happiness, which leads to people having less interest in addictions. It helps people to redirect their attention, increase their willpower, control their emotions and impulses, and increase their understanding of the causes behind their addictive behavior. It can help you in having mental discipline, which will break your dependencies by increasing your self control and awareness of triggers for addictive behaviors, better control of your mind, and better brain health. Meditation also helps improve your sleep. Almost half the population of world struggle with the disease of insomnia at some point in their life. After practicing meditation for almost 8 weeks, people can sleep better and are able to sleep on time and have longer working hours. Additionally, it can relax your body and see you in a peaceful state. Meditation also enhances your intuition. As your intuition increases, you are more alert, you understand people better. When you understand people better and have a better understanding of your surroundings, it becomes easy for you to deal with situations in day to day life. Lastly, meditation helps you to decrease negative thoughts and feelings in your body. Regular practice of meditation can reduce your tensions, anger, frustration, and sadness. It increases your focus and concentration that helps you to excel in your work area or studies. It harnesses your monkey mind that makes you master of your mind. If your brain is in your control, you can achieve whatever you want. You can construct your thoughts and increase your creativity. So let's see how it is done. We begin by sitting in a comfortable position. We keep our back straight. This meditation is done in two parts. First part is with Pran Mudra. Pran Mudra is when you touch the tip of your ring finger and little finger to the tip of your thumb, keeping other two fingers straight. We deeply inhale and we deeply exhale. When we exhale, we create Om sound. And when we inhale, our stomach should uh, expand. And when we exhale, our stomach should contract. That is the correct way of breathing too. And when we exhale, we have to exhale till the time we are out of breath. So let's give it a try. Pran Mudra. We close our eyes. So, okay, the second part is with Gyan Mudra. Gyan Mudra is when you touch the tip of your index finger to the tip of your thumb, keeping other three fingers straight, is Gyan Mudra. We deeply inhale and we deeply exhale. When we exhale, we create humming sound like a honeybee, and we roll back our tongue upwards
When we inhale, our stomach should expand, and when we exhale, our stomach should contract. When we exhale till the time we are out of breath. So let's give it a try. Gyan Mudra. We roll back our tongue. Okay. Looks easy? Yes, it is very easy and very convenient to do. Each part we are supposed to do at least 10 to 15 minutes to see the maximum benefits. And last but not the least is gratitude. Counting your blessings each day can bring huge change in your mental health. Studies show that practicing gratitude each day can increase your happiness levels by 25%. And happiness leads to huge improvements in your mental health. Gratitude is generally self-reporting, working on yourself, but such as but researchers have shown huge mental health improvements with hard scientific data, such as decreasing cortisol and stress levels, brain activation patterns, and increase in neurochemicals. Studies have shown that gratitude can actually revive the frontal lobe. So, what is gratitude exactly? Gratitude is a feeling of thankfulness and appreciation, seeing the glass half full instead of half empty, viewing a day as partly sunny instead of partly cloudy. It is all about counting your blessings each day of your life. Gratitude is a shift in perspective and a conscious choice. In any situation, you can choose to focus on a feeling of lack or abundance. You can choose a state of complaint or gratitude. Every day, in every circumstance, this choice is always available. It increases dopamine. Having gratitude increases your brain's production of dopamine. Dopamine is a feel good neurotransmitter that's part of the brain's reward and pleasure seeking circuit. People with abnormally low dopamine levels have impaired thinking, memory, and slower reaction time. Decreased amounts of dopamine causes the motor symptoms of Parkinson's disease. Lack of dopamine is also linked to depression, anhedonia, the inability to feel pleasure and lack of motivation. The benefits of gratitude start with the dopamine system because feeling grateful can activate the brain's stem region that produces dopamine. Additionally, gratitude towards others increases activity in the social dopamine circuit, which makes social interactions more enjoyable. Secondly, it increases serotonin level. When you start counting your blessings, it forces you to focus on the positive aspects of your life rather than the negative ones. The shift in thinking increases serotonin production in the anterior cingulate cortex. It contributes to happiness and well being, makes you feel better. Gratitude changes neurons. When you have gratitude for people and circumstances, it disconnects you from toxic negative emotions and those ruminating thoughts. Intentionally looking for things for which you are thankful engages your frontal lobe and creates positive emotions. Writing your gratitude to your friends, relatives, and in the diary might not give you results immediately, but after several weeks and months, the effects will be noticeable. Expressing gratitude trains your brain to be more in the habit of expressing gratitude. Positive emotions and neurochemicals can generate more positive changes in your brain and body. Your brain is a feedback loop. Similarly, negative thinking encourages more of the same.
The conclusion of this is that gratitude changes your brain and mental health in many measurable and positive ways. Now comes the question, how do I practice gratitude? As it is completely lost art and literally every soul on the earth is complaining. Keep a notebook and a pen on your bedside table. Secondly, every day make sure you write at least 5 points for which you are grateful. Do the count your blessing exercise whole day so that in the evening you remember what things you need to write in your notebook. Remember to say things like sorry and thank you. Say thank you to each and every person who is around you, whether she is a cleaner, sweeper, or maid. And lastly, send messages or voice notes to whoever is kind to you. Show your gratitude to them. So, if you have never written a gratitude note to the people around you, do it now and then see the attitude change in them and a positive change in your mental health. Now it's my time to show some gratitude for having me here. Thank you so much, Principal Sir and Dr. Anjum. Thank you so much. Yeah, over to Dr. Anjum. Yeah, Dr. Anjum. Rajen sir, hello, 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 hello. हाँ मेरी आवाज आ रही सर हेलो Yes sir. हाँ sir, वही sir, if you could just take the questions from the chat box and right yes sir. first of all thank you Dr. Aradhana for wonderful session and if I could take the essence of your lecture for today talking about feeling can help stay in good health and deal with times when you are in trouble. Keep active, eat well, drink sensible, taking breaks, and caring for others, accepting who I am, meditations, as well as expressing gratitudes. So I'm sure that our participants are going to take a leave from this, this wonderful sessions. So, ma'am, are you there? Dr. Radhana? Can you hear my voice? I have. Yeah, I'm hello. here only. Yes. Yeah. This is Rajinder from the other end. Yes, sir. Okay. There are very few questions I'm taking. Yes, sir. From this chat book. The question is from Latika Sharma. How to change craving for fast foods among youth who use it as a mood elevator and also continue tea while at work?
Can you repeat the question, sir, please? This is the question from Latika Sharma. How to change the craving for fast food Okay, craving for among fast food. youth? Yes. Yes, among youth and who use it as a mood elevator. Yeah, I know Also, that's. Yes, sir. please go ahead. Go ahead, ma'am. Yeah, that's a very wrong concept these days adopted by especially the young generation. They use fast food and other things, liquor and drugs, and all these things are used to elevate their mood, which is a very very wrong concept. And we all educated people who are elders, we need to educate them, uh, uh, you know constantly and repeatedly tell them that this holistic approach to control your mood and to control your brain for better functioning is the only way to achieve anything in life, actually, and to maintain your mind balance also. Right, right, right. Yes. So another question from Rupali. Due to some unexpected situation, we react most of the time badly. How to control it? Yeah, meditation and the brain foods which I told you, and you can include green tea also. That also balances your mood, and so these are the things. Feeling gratitude, counting 1 to 10 when you are angry, or Right. you are about to react or explode. So these are So the one ways you more can. question. Yes, sir. Right, right, right. So one more question. How can we increase our dopamine and serotonin level instead of meditation? सॉरी आई डिडंट गेट यू. आपने लास्ट में ओके क्या ओके बोला? ओके क्वेश्चन है जगदीप रवाल का है, ये पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी इंक्रीज आवर डोपामाइन एंड सेरोटोनिन लेवल. Okay. Through meditation, gratitude, every day, expressing your gratitude to the people around you, or the circumstances, and to the God, and eating proper food, brain friendly food. Exercise is very important, and drinking water whole day, and all these things help you. And most importantly, to stay away from toxic people as much as you can. So Right, right, right. One more question is there, ma'am. How one can overcome the state of depression through meditation? meditation, regular practice of meditation, and again brain food, and uh, counting your blessings, having water whole day, Hello? going under, taking some sunlight at least 20 minutes every day. So these are the things. Okay, okay. Last question. Last question is there, ma'am. If I could read it. Yes, Question yes, is, sir. what affirmation we should use to forget somebody's misbehavior in our life, which continuously disturb us? Affirmation could be like, people are This is good the question. around me. Yeah, the affirmation you can make is, people are good around me, people are very good around me, and people are very good around me. This, constantly repeating this affirmation will help you. People are good around me, and So thank you, making ma'am. yourself. Thank you. Yeah. Thank you very much. And you have nicely explained today's lectures, and I'm sure that our participants are going to take leave out of it. So I proceed to the formal vote of thanks for the today's session. Pranam and good mornings to one and all. I deem it a great honors and privilege to propose the vote of thanks to today's wonderful session. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर नवदीप जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय और संस्कृत विद्यापीठ, जो संस्थापक है नवयोग के भी, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आज के प्रातःकालीन सत्र को बहुत अच्छे से संबोधित किया. आपका विषय था चक्रों का सामंजस्य और नाद ध्यान.
हमारा बाहर जगत अनेक प्रकारों से आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अथवा अंतर संबंधित है, जैसे सूर्य और तारे आदि। इसी प्रकार योगी का भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर चक्रों के द्वारा एक दूसरे से ऊर्जावान होते हैं, और वैदिक मंत्र हमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिनको हम नाद के नाम से जानते हैं, जो हमें जागृति का संदेश देते हैं। महोदय, आपका यह व्याख्यान हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हम इस हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। We now extend our thanks to Dr. Aradhana Singh, counseling psychologist working with Army Golf Course, who very kindly accepted our humble request to grace today's session with your much relevant topic in present scenario, how to manage your mental health. Your address was insightful and one that inspired hope, optimism, and pride in all of us. We shall cherish so much, this sir. day with we shall cherish this day with you long after the webinar is over. Mental and emotional health is an essential part of our overall health and well-being, and managing emotion and maintaining emotional balance help face challenging and stress. We are all inspired by your great words. Thank you very much for the part of this webinar, ma'am. Thank you very much. Thank you so My much, gratitudes to our worthy, my gratitudes to our worthy principal, Dr. Rajiv Agarwal, for his guiding vision. Nation developed on the strength of education, and as a educationist, you have touched and changed the life of generation of students. Thank you for being the catalyst of change for so many of us, and you have been a pillar of strength, and whose advice and compassionate concern for students is remarkable. Thank you so much for making your presence here today, sir. I take this opportunity to express our sincere thanks to the respected teachers, scholars, yoga practitioners, and participants all across the world through Zooms and Facebook Live. We feel proud and thank you for making us feel happy with your presence to this session. We extend our thanks to Dr. Anjum Padyal for moderating the session for last 14 days. Thank you, ma'am. Thank you very much. And a big thank you to Dr. Aditya Saxena, convener, IQAC, and Dr. Monica for continued technique support. Thank you very much. The silent workers behind the scenes deserves a special thanks to the volunteers who have been working so hard for this webinar. We thank you for all being with us this morning. It's been really very great pleasure. Thank you. Namaste, namaskar. See you tomorrow at 10 with another session with another speakers. So, Dr. Aditya, over to you. Thank you so much, sir. And it's really a pleasure that we are continuing with these very exhilarating sessions on different aspects of yoga. So tomorrow morning, again, we will start with the session at 10 a.m. And all the participants are requested to join before that so that they can get the full benefit of the session. Thank you to everyone. And that I think that we will now end this session for today. Thanks. Thanks to all. Thank you.